Hi guys, so today I'm going to deal with W.B. Yeats' most famous poem, that is The Second Coming. So, first of all, I'm going to read it out. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-deemed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely some revelation is at hand. Mark to my words. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out when a vast image out of Spiritus Munda troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape which lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it reels shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again. But now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beats its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. So here, in the widening gyre, here gyre, do you know the gyre? W.B. Yeats represented gyre means the whole gyre, a circle, that is called the wheel. And wheel, it is representing the kind of civilization like in our era, or we studied in history also that there was Harappan civilization, Mesopotamian civilization, then it totally finished, the new civilization come up. So this is based on the gyre and it is represented by W.B. Yeats, and this concept of representing civilization is praised by Dante and William Blake as well. Okay, so in this gyre you can see this is like the clock. Okay, so here you can see one is representing the life is lost in darkness, means death. We all know about death, what is death. And then from here you can see when we born, so we forward progress, we progress forwardly. Okay, so then at the 8th, this is representing the half moon, and where soul dominates our body, means our soul decides that what our body should do, means our soul dominates our body, and then it progresses forward till 15, and here the 15 is gradual mark of the objective soul over the body. The soul dominates every inch of the body. Soul, here soul, once I want to say to you that, to reveal to you that soul means अगर आपको कुछ बीमारी होता है तो आपका सोल जो है ये ठान लेता है कि हम इससे फाइट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, तो ये आपका सोल जो है, और वो बीमारी ठीक भी हो जाता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा ही बीमारी क्यों ना हो। तो ये है सोल का काम, जो बॉडी पे हुए कोई भी डिजीज़ को ख़त्म कर दे रहा और सोल जीत जा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड सोल। और इसी चीज़ को ऑब्जेक्टिवनेस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। जब कोई इंसान अपने सोल के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है कि येस ही कैन डू दिस। ओके, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी और के बारे में, अपने सोल के बारे में सोचता है, यानी पर्सनल सेल्फ, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेल्फ। ओके, तो 1 से लेकर के 15 तक ये आपका प्रोग्रेस होता है, सोल का प्रोग्रेस होता है बॉडी के ऊपर, एंड 8th पर आप थोड़े से मतलब कि मैच्योर हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं, और
खुद अपना सही गलत का फैसला ले पाते हैं, इसको बोला गया है हाफ मून। हाफ मून से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए W.B. येट्स जो हैं वो यूनिवर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एज वेल एज ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द सिविलाइजेशन एंड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द लाइफ इटसेल्फ। वो यूनिवर्स के साथ साथ सिविलाइजेशन प्लस एक इंसान के लाइफ को भी डिनोट कर रहे हैं, यानी कि इस चक्र में 3 तरह का गुण छिपा है। एक तीर से 3 शिकार, एक तो यूनिवर्स, मून, सन, लाइट वगैरह वगैरह, और फिर सिविलाइजेशन की एक जाता है तो फिर दूसरा सिविलाइजेशन आता है, या तो उससे बेटर होता है नहीं तो उससे वर्स्ट होता है। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी एक तरह का बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा आधुनिक तकनीक वाली चीज़ें भी यूज़ होती थी, लेकिन एक ऐसा टर्म आया आफ्टर 2000 ईयर्स, 2000 साल का ये टर्म होता है, आफ्टर 2000 ईयर्स वो पूरा वैनिश्ड हो गया और फिर एक नया सिविलाइजेशन जन्म लिया। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो यहाँ से राइज़ हुआ, राइज़ होते होते यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, फिर 15 में आकर के टोटल डेवलप हो गया, लोग बहुत अच्छे से जीने लगे। फिर 22 तक आते आते उसका डेमोलिशमेंट शुरू होने लगा, डेमोलिश होने लगा। फिर 22 से जब उसका बिल्कुल डार्क मून हो गया तो दैट मीन्स द एंड ऑफ दैट सिविलाइजेशन। तो ये यहाँ पर सिविलाइजेशन को भी डिनोट कर दिया। और सेकेंडली ये लाइफ को कैसे डिनोट कर रहा है वो देखिए कि एक इंसान यहाँ पे जन्म लिया, बड़ा हुआ, प्रोग्रेस हुआ, यहाँ पे 8 नंबर पे आकर के, हाफ मून पर आकर के वो मैच्योर हुआ कि हमको ये करना है, ये सही है, ये नहीं सही है। फिर 15 तक आते आते वो बिल्कुल डेवलप हो जाता है, दैट इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाता है कि वो दूसरे को कुछ सिखा सकता है। ओके, फिर वहाँ से 16 से क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक इसका सोल जो है वो बॉडी पे कमांड करता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं लोग, और फिर किसी को भी ये सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसे होते हैं लोग। और उनमें इतना मतलब कि विल पावर होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। 15 तक आते आते जो कि फुल मून है, दिस इज़ कॉल्ड फुल मून, एंड 15 से उनका जो बॉडी होता है, बॉडी का जो ताकत है, इनर पावर जो है वो ख़त्म होने लगता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। तो सोल भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काम नहीं करता है, यानी कि इंसान जो है वो बुढ़ापे की ओर चलता जाता है। जब यहाँ से यहाँ तक 22 तक जाते हैं तो उनका जो बॉडी है उनके सोल पर अटैक कर लेता है, मीन्स कि बॉडी डोमिनेट्स द सोल। अब वो दिल से चाहेंगे भी कि हम पूरा लंदन घूम ले, इधर घूम ले, वहाँ घूम ले, लेकिन उनके पैर पे दर्द होगा, उनका पैर काम नहीं करेगा, उनको आँख से दिखेगी नहीं, वो उनका दांत खराब होगा, कान से सुनाई नहीं देगा। तो उनका जो बॉडी है उनके सोल पे काबू किया हुआ है। ओके, तो यहाँ 15 से 22 तक जाते जाते उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, और 22 से 28 तक आते हुए 1 तक वो बहुत पूरी तरह से बॉडी सोल पे काबू कर लेता है, मीन्स कि बेड रेस्ट, बेड पे रहते हैं लोग। और 1 तक आते आते दिस इज़ द लाइफ इज़ लॉस्ट इन डार्कनेस, मीन्स डेथ हो जाती है इंसान की। तो यही चीज़ पूरे इंटायर सिविलाइजेशन में होता है, जैसा कि यूनिवर्स में होता है, चांद आया, रात हुई, फिर सुबह हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुई, फिर से रात हुई। तो ये है आपका चक्र। ओके, इसी को जायर नाम दिया गया है, इसको आप व्हील भी कह सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिक्शनरी मीनिंग, एंड W.B. येट्स ने इसको ये किया था, जिस पे पूरे साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स ने अग्री किया कि येस इट हैपन्स, इट इज़ द फैक्ट। ओके, तो इसी जायर को डिस्क्राइब यहाँ पर इन्होंने किया है। जायर, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, मीन्स जो बड़ा सा जायर है वो घूमता रहता है। द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो फैल्कन है, फैल्कन एक बहुत बड़े बर्ड का नाम है, और फैल्कनर जो होता है उसका ट्रेनर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फैल्कन है वो अपने मास्टर का बात नहीं मानता है। थिंग्स फॉल अपार्ट,
मीन्स कि हर कुछ सब चीज़ इधर उधर हो गया है, एवरीथिंग इज शैटर्ड नाउ, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। हियर सेंटर इज रिप्रेजेंटिंग द गॉड। तो गॉड को है, इंसान का जो गॉड के प्रति जो बिलीव होता है वो सब ख़त्म होते जा रहा है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि जो राजा थे जिन पर प्रजा का बिलीव होता है कि अगर हमारे किंगडम पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो मेरे जो राजा हैं, जो किंग हैं, वो हम लोग को सिक्योर कर सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो राजा भी, वो किंग भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, जो कि वर्ल्ड कंट्री पे अपना कुछ भी कर नहीं सकता। मीन्स कि इविल इज़ राइजिंग। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर। और जो ब्लड था, हर तरफ ब्लड शेड्स दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एवरीवेयर यू कैन सी there was bloodshed every people were enraged that what is going to happen next। सब कोई भी इंसान मेंटली फ्री नहीं था, तो इस वजह से उनका गॉड के प्रति जो मतलब बिलीफ सिस्टम था वो तो ख़त्म हो ही रहा था, लेकिन इसके बनिस्बत जो राजा के प्रति जो बिलीफ सिस्टम था, किंग पे जो बिलीफ सिस्टम था, वो भी ख़त्म होते जा रहा था। ठीक है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रॉन। तो जो बच्चों का जो इनोसेंस था वो भी ख़त्म होते जा रहा था। जो इनोसेंट पीपल थे उनकी इनोसेंसी ख़त्म होती जा रही थी। जैसे कि आप अभी का ही एग्जांपल ले लें, ये पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है। अभी में क्या होता है कि लोग किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि कौन क्या कर देगा, कोई नहीं जानता। नो वन इज़ बिलीविंग और ट्रस्टिंग ऑन ईच अदर। तो ये एक तरह से द किल ऑफ इनोसेंस है कि आप किसी पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वो इनोसेंट है, वो हमेशा आपसे सच बोलेगा, वो आपसे कभी धोखा नहीं करेगा। तो ये जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उस एज में। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। मीन्स द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन। जो बेस्ट पीपल था उसका सारा जो कन्विक्शन है वो ख़त्म हो चुका था, अच्छाई बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। while the worst are full of passionate इंटेंसिटी। और जो वर्स्ट लोग थे वो बिल्कुल मीन्स कि थ्रोन में थे, रूलर बन गए थे वर्स्ट, और जो गुलाम हो कहते हैं उनको स्लेव्स बन गए थे। बेस्ट लोग स्लेव्स बन गए थे, रूलर कौन बन गया था, वर्स्ट लोग बन गए थे। सत्य और असत्य की जीत यहाँ पर हो रही। अब ये जो फर्स्ट स्टांजा है इसमें W.B. येट्स ने क्या शो किया, फुल ऑफ हार्शनेस, फुल ऑफ डार्कनेस। तो ये डार्क पार्ट ऑफ जायर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 28 जो नंबर था हमारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ल्ड जो है बिल्कुल डार्कनेस की तरफ चला जा रहा है, फुल ऑफ डार्कनेस। देयर इज़ लॉस ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन लॉस्ट इन डार्कनेस। ओके, तो फर्स्ट स्टांजा में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। And the second stanza opens with little bit of happiness, little bit of hope. As you can see, surely some revelation is at hand. एक कहावत है हमारे इंडिया में बोली जाती है, ख़ास तौर से गांव में बोली जाती है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, कभी भी अंधेरा नहीं रहता, उजाला आता है। ठीक है, तो surely some revelation is at hand। तो पोएट का ऐसा लग रहा है कि श्योरली सब चीज़ ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छाई की जो किरण है वो नज़र आ रही है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। सेकेंड कमिंग इस जायर में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ द सेकेंड कमिंग। तो फर्स्ट ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही डार्कनेस रहता है, डार्क सिविलाइजेशन। और ये जो स्टार्ट होता है रीबर्थ, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रीबर्थ। ये रीबर्थ हुआ, तो रीबर्थ इज अ काइंड ऑफ होप, और ये फुल ऑफ डार्क सिविलाइजेशन था। डार्क सिविलाइजेशन,
15 to 1 तक डार्क सिविलाइजेशन, 1 to 15 तक रीबर्थ, यानी कि अ लिटिल काइंड ऑफ होप, हैप्पीनेस, एक जो किरण होता है होप हैप्पीनेस का वो दिखाई देता है। तो अब क्या है कि श्योरली सम सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। यहाँ पर सेकेंड कमिंग ये हुआ, वन से लेके 15 तक सेकेंड कमिंग हुआ, यानी कि 2 को डिनोट कर रहा है कि सेकेंड कमिंग होने वाला। ओके, द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज ऑफ स्पिरिटस मंडा ट्रबल्स माई साइट। मतलब कि स्पिरिटस मंडा किसको कहते हैं? आपका जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है, कलेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज़ कॉल्ड स्पिरिटस मंडा। मीन्स कि आपके दिमाग में पास्ट भी रहता है, प्रेजेंट भी रहता है, फ्यूचर भी रहता है कि क्या होने को है, क्या हुआ, ये सब घूमते रहता है, इसको स्पिरिटस मंडा कहते हैं। तो इतना ज़्यादा इंसान परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा हार्शनेस देख लिया था, डार्कनेस देख लिया था, मतलब कि कंट्री में, that he was not able to believe that yes, it is the second coming, it is the revelation, we will then become happy। वो लोग सोच नहीं पाए थे, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। तो हार्डली आर दोज वर्ड्स, हार्डली आर दोज वर्ड्स, सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स, मीन्स कि सबका ट्रस्ट जो है, वो बिलीव सिस्टम जो है वो ख़त्म होते जा रहा था। ओके, troubles my sight somewhere in sands of the desert। Here desert is representing the sorrow, emptiness, a shape with a lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun। मीन्स कि एक डेजर्ट में, वास्ट डेजर्ट, ये आप कह सकते हैं कि पूरा जो कंट्री था वो एक डेजर्ट नुमा हो चुका था, किसी के अंदर होप नहीं था, हर सारी चीज़ें शैटर्ड हो चुकी थी, लोगों के अंदर से होप ख़त्म हो गया था, खोखले हो गए थे लोग, इस तरह से हो गए थे। तो एक लाइट नज़र आता है उस डेजर्ट पे। वो कौन सा लाइट होता? अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। ये हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी है, एक गॉड को बोला, रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर कि शेप विथ लायन बॉडी, बॉडी लायन का है, एंड हेड ऑफ अ मैन, हेड ऑफ अ मैन। इस पे भी इंसान बिलीव नहीं कर सकता कि हेड तो मैन का है, दिखने में तो इंसान लग रहे, लेकिन बॉडी लायन का है। अब उन पे बिलीव करे कि नहीं करे कि वो सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ शोइंग दैट ही इज़ अ लायन ऑल्सो। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। उनका जो गेज है वो पिटीलेस नज़र आ रहा है। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रियल शैडो ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। और जैसे जैसे वो सामने की ओर आ रहा है, डेजर्ट की तरफ आ रहा है, इंसानों की तरफ आ रहा है, वो जो बर्ड्स जो थी, डेजर्ट बर्ड्स जो थी, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए आ रहा है, उसको मतलब डिस्टर्ब करते हुए आ रहे। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और फिर से डार्कनेस आ जाता है। बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेक्स्ड टू नाइट मेयर बाई अ रॉकिंग क्रेडल। और ये जो 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप है, वर वेक्स्ड टू नाइट मेयर बाई अ रॉकिंग क्रेडल। ये जो चक्र है ना, ये 20 centuries का होता है, यानी कि 2000 years का होता है, 2000 years का होता है। ओके, तो इसमें जो इंसान खो चुका था, सो चुका था, वो एक तरह से वेक्स्ड हो चुका है। फिर से एक इंसान के अंदर होप आ चुका है कि ये है कि नहीं, ऐसा होने वाला है। मतलब कि हमारी जो सुनसान ज़िंदगी है, हर तरफ ब्लडशेड्स है, ये फिर से एक अच्छा दिन में तब्दील होने वाला है। इस पे भी उनको बिलीव नहीं हो रहा था। ओके, and what rough beats its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born। Bethlehem is the symbol of the new reincarnation। Okay, so the second stanza is representing a kind of hope
कि फिर से रेवलेशन आने वाला है। लेकिन यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं, बट नाउ आई नो दैट 20 centuries of stony sleeper wakes to nightmare by a rocking cradle and what rough beats यहाँ पर साइंस को डिनोट किया गया कि जब इंसान का ये गॉड पर से होप हट जाता है, किंग पर से होप हट जाता है, तो एक नया मसीहा पैदा होता है, वो है साइंस। ये साइंस और मशीन टेक्नोलॉजी का ज़माना आने वाला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, जिसके वजह से लोग मनी के पीछे भागेंगे, ना कि ब्लेसिंग्स के पीछे भागेंगे, ना कि सोल के पीछे भागेंगे कि एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है, इंसानियत के पीछे नहीं बल्कि साइंस के पीछे जाने वाले हैं। तो ये एक तरह से होप तो है, लेकिन ये और भी ख़तरनाक होप है जो इंसानियत को ख़त्म कर देगा। तो first stanza is representing the present condition of the country and the second stanza is representing the revelation, but not in the sense of Jesus Christ, but in the sense of rough beats, that is the science. Okay, I hope you understood it. So I'll see you in my next video. Bye bye, take care.